Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do a chapter named A Visit to Cambridge by Firdaus Kanga. So, without any further delay, let's start. So, dear friends, this chapter is about a conversation between two people. One is Stephen Hawkins and the other one is Firdaus Kanga. Okay? Firdaus Kanga is Indian. He went to England and especially to Cambridge, and when he meet um, Professor Hawking there, and they had a conversation between them. So this chapter is based on that. So before I explain this chapter to you, I would like to share the two personalities, Stephen Hawking and Firdaus Kanga. Okay, Stephen Hawking was an astrophysicist, and he was from England. He was a great scientist, and he was differently abled. He was confined to a wheelchair actually. He suffered from a paralysis, and after that, his whole body did not move. Only his fingers could move, the rest of his body couldn't move. He was the author of one of the best sellers ever, A Brief History of Time. And in 2009, he was given the Presidential Medal of Freedom in the US. All right. Now let's talk about Firdaus Kanga, who is writing this chapter. Firdaus Kanga, he was a writer. He is a writer and journalist from Mumbai. Now he's living in London. He is differently abled and is confined to a wheelchair as well. He made a film documentaries like Double the Troubles, Twice the Fun, etc. And from a very young age, that means when he was a child, he had a very brittle bones. He couldn't stand. If he stood, or if he stands, his bones will break. So he had a very brittle, rare kind of a condition in which his bones breaks. So he was also confined to a wheelchair. So this was a little description about these two personalities. Now we'll start our chapter. This is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them individually differently abled. Now this chapter, it will tell you about the meeting between two people, that is Stephen Hawking and Firdaus Kanga. They both are extraordinary and differently abled. Okay, they are differently able, they are disabled. So, read on how these two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair and on how the so called normal people react to the differently abled. In Firdaus Kanga's words. So, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे इन दोनों ने एक कन्वर्सेशन की है डिफरेंटली एबल्ड पीपल के ऊपर और लोग कैसे रिएक्शन देते हैं डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए. ओके, so here it says Stephen Hawking was one of the greatest scientists of our time. He suffered from a form of paralysis that confined him to a wheelchair. जो स्टीफन हॉकिंग्स थे वो हमारे टाइम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं और रहे थे. ही सफर्ड फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस. उन्हें एक प्रकार का पैरालिसिस हुआ था जिसकी वजह से वो एक व्हील चेयर पर रिस्ट्रिक्ट हो गए थे. कन्फाइंड मीन्स टू रिस्ट्रिक्ट. And allowed him to speak only by punching buttons of on a computer, and he was not even able to speak. Only he could punch few buttons. वो सिर्फ एक उनके लिए एक ऐसी चेयर बनाई गई थी जिसमें वो कीबोर्ड पे पंच करते थे जिसमें से वॉइस निकलती थी और अपने थॉट्स को वो उस कंप्यूटर के थ्रू उस वॉइस मैकेनाइज़र के थ्रू वो अपने थॉट्स को शेयर कर पाते थे. फिरदौस कांगा इज़ अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई. फिरदौस कांगा एक राइटर हैं और एक जर्नलिस्ट है जो कि रहते हैं मुंबई में. कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक ईजिली व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. सो जब फिरदौस कांगा एक छोटे चाइल्ड थे तब उनकी बोन्स में एक ऐसी रेयर डिजीज़ थी जिसकी वजह से वो बहुत ही ब्रिटल थी. ब्रिटल मीन्स ईजिली ब्रेकेबल. सो उनकी बोन्स बहुत ही आराम से टूट जाती थी. एंड लाइक हॉकिन कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर. सो उसकी वजह से उन्हें व्हील चेयर पे अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी. कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड. सो हियर फिरदौस कांगा इज़ राइटिंग द होल चैप्टर एंड ही इज सेइंग जो कैम्ब्रिज है वो मेरे लिए एक मेटाफर है इंग्लैंड. मतलब मैं
अगर इंग्लैंड बोलना चाहूँ तो आई से कैम्ब्रिज, ओके। And it was strange that when I left, it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. और ये बहुत ही strange बात थी कि जब मैं वहाँ से वापस आया, when I left England, तब वो मेरे लिए एकदम दूसरी ही दुनिया, बिल्कुल बदल चुका था वो इंग्लैंड मेरे लिए, क्योंकि तब मैंने स्टीफन हॉकिंग को मैं मिला था। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking. So when I was taking a walking tour, वो कैम्ब्रिज का एक टूर ले रहे थे, तो गाइड ने मेंशन किया स्टीफन हॉकिंग के बारे में, एंड ही सेड, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. So उस गाइड ने ये बात बोली, poor man. So जो पुअर मैन वर्ड था, ये कांगा को थोड़ा सा चुभ गया, एंड द गाइड सेड कि जो स्टीफन हॉकिंग है वो एक डिजेबल्ड पर्सन है, पर वो इतने इंटेलिजेंट है, ही इज़ लाइक द सक्सेसर। सक्सेसर मीन्स इनहेरिटर, मतलब जब कोई किसी की जगह ले लेता है, सो इट्स लाइक सक्सेसर टू आइजैक न्यूटन। और जो आइजैक न्यूटन की जो चेयर है वो उस पे बैठते हैं, दैट मीन्स ही इज़ द लेवल ऑफ आइजैक न्यूटन। I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed dystrophy astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever, lived here. Now, this फिरदौस कांगा, ही सेड, मैं बिल्कुल भूल चुका था कि वहाँ पे स्टीफन हॉकिंग्स भी रहते हैं, जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट हैं। और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स हैं, बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स है, कि वो वहाँ पे रहते हैं। ये चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई थी। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and, almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house. और जैसे ही मेरा वो टूर वहाँ पे कंप्लीट हुआ, मैं रश करता हुआ फ़ोन बूथ के पास गया, और उसकी जो कॉर्ड थी उसको मैंने ऑलमोस्ट ब्रेक कर ही दिया था, बिकॉज ही कैन नॉट मूव इनसाइड द फ़ोन बूथ। सो वो जो फ़ोन था वो उसको बाहर लाना पड़ा, जिसकी कॉर्ड थोड़ी सी खिंच गई थी, एंड उसने उससे स्टीफन हॉकिंग्स के घर पे फ़ोन किया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, और लाइन पे उनके असिस्टेंट थे, एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। और मैंने उस असिस्टेंट से बात करते हुए उससे कहा कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पे आया हूँ। पर हैप्स ही थॉट आई हैड प्रॉपल्ड माई सेल्फ ऑल द वे टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन। सो उस असिस्टेंट ने शायद ये सोचा कि मैं खुद को प्रॉपल करके ऑल द वे इंडिया से यहाँ पे आया हूँ ब्रिटेन में ट्रैवल करने के लिए। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिन, इवन 10 मिनट्स वुड डू। और फिरदौस कांगा ने असिस्टेंट से कहा कि मुझे एटलीस्ट सिर्फ 10 मिनट्स आप मुझे दे दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। हाफ एन आवर, ही सेड, फ्रॉम 3:30 to 4, and his assistant was quite grateful at the time, and he said, okay, I'll give you 30 minutes from 3:30 to 4, so you can come. Suddenly, I felt weak all over. Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. So now suddenly he said कि मुझे थोड़ा सा वीक, एकदम से मैं वीक होना स्टार्ट हो गया, मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं बहुत वीक हूँ। ग्रोइंग अप डिज़ेबल्ड, क्योंकि मैं डिज़ेबल्ड था बचपन से, तो लोग मुझे सब ये कहा करते थे कि हम मुझे हमेशा ही स्ट्रॉन्ग बन के रहना पड़ेगा। इट्स लाइक कि मेरा कोई बैंक अकाउंट है स्ट्रॉन्गनेस का, जिसके लिए मुझे हर टाइम एक चेक देना पड़ता है स्ट्रॉन्गनेस के लिए। सो द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज़ सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज। और डिजेबल्स में जो चीज़ हमें स्ट्रॉन्ग होना और ज़्यादा हमें मोटिवेट करती है, वो जब हम किसी और डिजेबल पर्सन को देखते हैं और उनकी तरह कुछ ह्यूज अचीव करना चाहते हैं, देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। और तब तुम्हें पता चलता है कि हाउ मच इज़ पॉसिबल, इवन यू आर डिजेबल, बट स्टिल हाउ मच इज़ पॉसिबल दैट यू कैन डू इन दिस वर्ल्ड। जितना तुम सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा तुम कर सकते हो। नेक्स्ट आफ्टरनून जब फिरदौस कांगा मिलते हैं स्टीफन हॉकिंग से, तब स्टीफन हॉकिंग्स उनसे ये बात करते हैं दैट आई हैवंट बीन ब्रेव, कि मैं
इस तरह ब्रेव कभी भी नहीं हुआ हूँ, said his disembodied computer voice the next afternoon. As you know, he cannot speak, so he has some kind of a wheelchair in which there is a computer fixed who talks for him. And disembodied means unidentified, which you cannot identify कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है. So he said that I have had no choice. मुझे brave मैं कभी नहीं रहा हूँ, पर मेरे पास और कोई choice भी नहीं थी. Surely I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice, but I kept quiet. So Firdaus Kanga said, surely that I wanted to say, मैं ये कहना चाहता था कि living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. So ये जो आप इतने क्रिएटिव हो इस रियलिटी के बावजूद कि आपकी जो बॉडी है वो दिन ब दिन वीक होती जा रही है, वॉज इट अ चॉइस? बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम. पर मैं चुप रहा और मैं गिल्टी फील कर रहा था मैं जितनी भी बार उनसे बात कर रहा था, आई बिकॉज I was like forcing him to respond. It was not that easy to talk to him. There he was tapping at a little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers. अब उसको गिल्टी फील इसलिए हो रहा था क्योंकि उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए उनको अपनी उस पेल लॉन्ग फिंगर्स से जिसमें थोड़ी बहुत हलचल थी उससे परफेक्ट वर्ड्स फाइंड करने पड़ रहे थे उनको जवाब देने के लिए. So every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion और कुछ टाइम बाद उनकी आइज़ जो थी वो फ्रस्ट्रेट होकर लाइक एग्जॉस्ट होकर वो अपनी आंखें बंद कर लेते थे. Sitting opposite him I could feel his anguish और मैं उनके opposite बैठा था. Firdaus is saying that मैं उनके opposite बैठा था and I could feel that exhaustion that he was going through and I could feel his anguish. Um, The mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpse because he wanted to talk so much, his expressions, he wanted to express himself, but his mind was वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट दैट टाइम. जो भी उनके थॉट्स आ रहे थे बट उनके जो फ्रेजेस कंप्यूटर के थ्रू आ रहे थे दे वर लाइक फ्रोजन एंड दे वर लाइक एज स्टिफ एज कॉप्स मीन्स समथिंग डेड. There was no emotion in that computer voice. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said. Now फिरदौस कांगा ने कहा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि जो डिजेबल पीपल होते हैं वो लाइक उनकी हैबिट होती है अनहैप्पी रहना. आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ. आर यू ऑफ्टन लाफिंग इन साइड? और फिरदौस ने आगे कहा कि आई नो कि ये सही नहीं है, क्या आप भी अपने मन के अंदर अंदर कभी हंसते हो? About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. और कुछ 3 मिनट के बाद उन्होंने रिस्पॉन्स किया बिकॉज उनको 3 मिनट लग गए उस बात को रिस्पॉन्स करने के लिए उसको टाइप करने के लिए. एंड ही रिस्पॉन्डेड दैट आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पेट्रोनाइज मी. कि मुझे कभी कभी ये बात बहुत ही हंसी वाली लगती है जब पीपल मुझे पेट्रोनाइज करते हैं लाइक दे फील दे treat me in a way which is very kind but a little superior also they feel from me. Do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन फिरदौस ने पूछा कि क्या आपको ये चीज़ अनोइंग लगती है, इरिटेटिंग लगती है कि जब कोई मेरे जैसा आपके काम में आके दखल देता है और आपको डिस्टर्ब कर देता है? द आंसर फ्लैश्ड येस. और उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे वो जो आंसर आया उसमें लिखा था येस. देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल. फिर उन्होंने थोड़ा सा स्माइल किया. एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड. और उसके बाद वो छोटी सी स्माइल देख के मुझे ये चीज़ पता चल गई बिना किसी सेंटिमेंट या सिली बात के कि मैं सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इस दुनिया के उनको मैं इस टाइम देख रहा हूँ. A first glimpse of him is shocking because he's like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional. स्टीफन हॉकिंग्स की पहली झलक देख के बहुत शॉक सा लगता है क्योंकि जो भी आपने उनकी फ़ोटोग्राफ्स देखी हैं स्टिल फ़ोटोग्राफ्स वो इतने स्टिल हैं, वो बिल्कुल हिलते नहीं हैं कि जैसे उनकी कोई फ़ोटोग्राफ 3D डायमेंशन में आप देख रहे हो.
एंड देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज इनटू अ स्लम्प, और फिर आप देखते हैं उनका जो हेड है वो ज़रा सा झुका हुआ है एक स्लम्प की तरह। द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और उनका जो अपर बॉडी है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है उनकी ब्लू शर्ट के अंदर। द वेस्टेड लेग्स, उनकी जो लेग्स हैं जो कि उस टाइम किसी काम की नहीं है। यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट। आप उनकी आंखों को जब देखते हो तो ऐसा लगता है उनकी आइज़ जो है वो कुछ कहना चाहती हैं। दे आर स्टिल बट दे, इट्स लाइक दे आर ट्राइंग टू स्पीक समथिंग, दे आर ट्राइंग टू से समथिंग विच इज़ वेरी अर्जेंट एंड बट you cannot tell what it is. But you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. But आप उस टाइम एकदम शेकन फील करते हो अंदर से, बिकॉज आपने कुछ ऐसा देखा होता है जो आपने कभी सोचा नहीं होता आपने आप कभी देखोगे। लाइक यू हैव नेवर थॉट ऑफ सीन हिम, मिस्टर हॉकिंस, personally. Before you, like a lantern whose walls are worn so thin, you glimpse only the light inside is the incandescence of a man. So मिस्टर हॉकिंस को यहाँ पे फिरदौस खान ने एक लैंटर्न की तरह प्रेजेंट किया है। लाइक एक ऐसा लैंटर्न है वो, एक ऐसे दीपक हैं जिनकी जो वॉल्स हैं वो थिन हो चुकी हैं अंदर से, बट उनके अंदर की जो लाइट है, जो एक दिए के अंदर की रोशनी होती है, वो अभी भी उतनी ही ज़्यादा ब्रिलियंट है। लाइक उनकी बॉडी को लैंटर्न की जो वॉल्स होती है उनके साथ कंपेयर किया गया है, जो कि काफ़ी थिन हो चुकी हैं, बट उसके अंदर का जो दीपक है, जो लाइट है, रोशनी है, दैट इज़ स्टिल वेरी ब्रिलियंट। द बॉडी ऑलमोस्ट इररेलेवेंट एग्जिस्ट्स ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज, और उनकी जो बॉडी है विच इज़ not important at the time, which has no existing at the time because they cannot move that body, right? So it's like a case of made of shadows, कि वो एक shadow की बनी हुई कोई चीज़ है which has no importance at the time. So that I, no believer in eternal souls, know that this is what each of us is. Everything else an accessory. So मैं जो eternal souls पे believe नहीं करता हूँ, अमर आत्मा पे बिलीव नहीं करता हूँ, मेरे लिए हम सब यही हैं। बाकी सब जो चीज़ें हैं वो एक्सेसरी की तरह हैं। मीन्स हमारी बॉडी एंड ऑल ये सब हमारी एक्सेसरीज हैं। जो मेन है वो हमारी लाइट है, हमारी ब्रिलियंस है, हमारी काबिलियत है। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. ये क्वेश्चन मैंने उन्हें पहले भी पूछा कि what is the best thing being disabled? अगर आप डिसेबल हो तो उसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है? I don't think there is anything good about being disabled. I think I said you do discover how much kindness there is in the world. So स्टीफन हॉकिंग्स ने आगे से रिस्पॉन्ड किया कि मुझे नहीं लगता कि डिसेबल होने में कोई भी अच्छी बात है। फिरदौस खान ने कहा आई थिंक बट डिसेबल होने से आपको वर्ल्ड में जो काइंडनेस है वो देखने का मौका भी मिलता है। Yes, he said. It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone. और जब ये yes वॉइस स्टीफन हॉकिंस के कंप्यूटर की तरफ से आई, देन फिरदौस खान फेल्ट लाइक कि ये एक डिसएडवांटेज था कि वो खुद नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि उस यस में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं थी, उस यस से कोई भी हमें उसमें कोई स्ट्रेस नहीं था, शेड नहीं था, टोन नहीं था, तो कोई चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आ पाती। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुजियास्टिकली ही अग्रीड विद मी, और जब उन्होंने मेरी बात से अग्री करके येस बोला तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि हाउ एंथुजियास्टिक ही वॉज एट द पॉइंट। ओके, every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. How little it mattered then that I would never walk or even stand. Now, फिरदौस खान इज़ सेइंग कि जितनी बार भी मैं खुद को अपनी चेयर से मूव कर रहा था और मैं अपनी घड़ी में टाइम को देख रहा था कि मेरे 30 मिनट्स ओवर होने वाले हैं या नहीं, मुझे अपने आप में एक रिलीफ फील हो रहा था, एक एक्साइटमेंट सी फील हो रही थी अपनी बॉडी को लेके कि ये चीज़ कितनी कम मैटर करती है कि मैं चल नहीं पाता, बिकॉज एटलीस्ट आई कैन मूव अराउंड, तो इट डज़ नॉट मैटर दैट आई कैन नॉट स्टैंड। आई टोल्ड हिम he had been an inspiration for me and surely for others. Did that thought help him?
और उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा फिरदौस ने, एंड ही सेड कि क्या आपको लगता है कि आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन हो? क्या आपको लगता है कि ये जो थॉट है ये दूसरों के काम आता है? नो, ही सेड, एंड आई थॉट हाउ फूलिश आई वॉज टू आस्क। और जब जवाब आया नो, तब मैंने सोचा कि कितना फूलिश क्वेश्चन था जो मैंने ये पूछा। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see your breathing still. क्योंकि जब आपकी बॉडी एक क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम बन गई हो, एक ऐसा रूम जिसमें सांस आने में भी मुश्किल हो, और उसकी जो वॉल्स हैं वो दिन ब दिन अंदर की तरफ छोटी होती जा रही हैं, नैरो होती जा रही हैं, तो जो आउटसाइड लोग हैं वो आपको देख के स्माइल करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। Is there any advice you can give disabled people, something that might help make life better? क्या ऐसी कोई एडवाइस है जो आप डिजेबल लोगों को देना चाहते हो जिससे कि उनकी लाइफ जो है वो और बेटर हो जाए? ये क्वेश्चन फिरदौस कांगा ने स्टीफन हॉकिंस को पूछा। They should concentrate on what they are good at. I think things like the disabled Olympics are a waste of time. Now the response was, स्टीफन हॉकिंग ने आगे से रिस्पॉन्स दिया कि उनको उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं, जिसमें वो गुड हैं, ना कि डिजेबल्ड ओलंपिक्स जैसी चीज़ों में। दिस इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। I know what you mean. I remembered the years I have had spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had unstringed it one night. और ये बात जो है फिरदौस कांगा बहुत अच्छे से समझ सकते थे कि ये जो डिजेबल्ड ओलंपिक्स है ये वेस्ट ऑफ टाइम क्यों है, क्योंकि फिरदौस कांगा ने खुद एक स्पेनिश गिटार सीखने की उन्होंने बहुत ट्राई किया। उसने सोचा कि मैं इसको सीखूंगा, मैं बजाऊंगा, बट ही couldn't डू इट। एंड वन डे वो बहुत खुश हुए जब उन्होंने उस गिटार की एक एक तार को तोड़ दिया। द हाफ आवर वॉज अप, आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, आई सेड ग्रिनिंग, थैंक यू फॉर। अब हाफ आवर ओवर हो चुका था, तो फिरदौस कांगा ने आगे कहा कि आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, कि मैं आपको काफ़ी इरिटेट कर चुका हूँ। आई सेड ग्रिनिंग, ग्रिनिंग मीन्स छोटी सी स्माइल के साथ, thank you, and he was just about to complete his sentence, but Stephen Hawkins, that computer voice said, stay, have some tea, I can show you the garden, कि तुम रुको, हम कुछ चाय पानी लेते हैं, मैं तुम्हें गार्डन अपना दिखाता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, वो गार्डन एक पार्क की तरह बिग था। But Stephen Hawking covered every inch, rumbling along in his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the way. But Stephen Hawking जो थे वो उस गार्डन के हर एक इंच को उस टाइम उनको दिखाते हुए कवर कर रहे थे, एंड ही वॉज रम्बलिंग अलॉन्ग, मतलब वो साथ साथ बताते हुए जा रहे थे अपनी मोटराइज्ड व्हील चेयर की आवाज़ में। एंड वेल आई डॉज्ड टू कीप आउट ऑफ द वे, लाइक मैं मुश्किल से मैं फटाफट क्विकली मूव कर देता था कि मैं कहीं उनके रास्ते में ना आ जाऊँ। We couldn't talk much. The sun made him silent, the letters on his screen disappearing in the glare. और हमने उस टाइम कुछ ज़्यादा बात नहीं की। जो सन था उसकी वजह से वो शायद शांत हो गए, एंड जो लेटर्स थे उस उनकी स्क्रीन पे जो अपीयर हो रहे थे अब वो डिसअपीयर होने स्टार्ट हो गए ग्लेयर की वजह से, सन के ग्लेयर की वजह से। एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव, और 1 घंटे के बाद हम लोग वहाँ से जाने को तैयार हो गए पार्क से। आई डिडेंट नो वॉट टू डू, मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, ना तो मैं उन्हें किस कर सकता था और ना ही रो सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इन टू द समर इवनिंग, मैंने उनके शोल्डर को टच किया और मैंने अपनी व्हील चेयर वहाँ से, उनके घर से मैं वहाँ से चला गया। आई लुकड बैक, मैंने पीछे मुड़कर देखा, एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, और मैं जानता था कि वो मुझे वेव कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। दो ही वॉजंट, पर एक्चुअल में नहीं, क्योंकि वो पैरालाइज्ड है। Watching him, an embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years, alone, I knew that my journey was over for now. और उनको वॉच करते हुए वो मेरे लिए एक एग्जाम्पल थे फॉर माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, कि मैं कितना ब्रेव हूँ। द वन आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स, मैं एक ऐसे अपनी सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जा रहा हूँ जिसमें मैं बहुत ब्रेव हूँ। एंड द वन आई हैड बिलीव्ड इन सो मैनी ईयर्स अलोन, और इतने साल तक जो मैंने अपने आप में ब्रेवरी को महसूस किया है, आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ।
और अब मैं ये जानता था कि वो जो मेरी जर्नी है, अपने ब्रेवेस्ट सेल्फ को जानना, वो अब तक के लिए फिनिश हो चुकी है। So, guys, from this chapter, we got the message that once you choose hope, nothing is impossible. Either you are disabled or not, if you have hope in your life, nothing is impossible for you. You can do anything, right? So, this was our chapter of written by Firdaus Kanga, named A Visit to Cambridge. Guys, I hope that you understood the chapter and you liked it. And if you do, please hit the like button and subscribe to my channel. And for more videos, I'll be updating that soon. I'll meet you in my next video. Till the time, take care. Have a wonderful day ahead. Bye bye.